بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کچا جیل، پیکو روڈ، ہمدرد چوک سمیت دیگر شاہراہوں کی لائٹس خراب ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ روڈ پر اندھیرے کے باعث وارداتوں اور حادثات کا خدشہ رہتا ہے، شہریوں کی جانب سے کہا گیا، جبکہ شہریوں کا انتظامیہ سے شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کروانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ بالکل، شہر کی مین اہم شاہراہیں جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبی ہیں۔ جس طرح بات کریں ہم وابڈا ٹاؤن کی، کچا جیل روڈ کی، ٹاؤن شپ کی، ایسی متعدد ایسی شاہراہیں ہیں جو کہ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کچا جیل روڈ اس قدر اندھیرے میں ڈوبا ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے گزرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ لفٹ مانگنے کے بہانے بائک کو روکتے ہیں اور ان کو لوٹ بھی لیتے ہیں، اور اس طرح کے حادثات بارہا دفعہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ نہ صرف پریشان ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو مین شاہراہوں کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں، روڈ لائٹس ہیں، ان کو انتظامیہ ٹھیک کرے، کیونکہ متعدد ایسی لائٹس ہیں جو کہ سولر پینل سے چلتی ہیں، اور اس وقت آ کر وہ لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہی وقت ہوتا ہے جب لوگوں کا رش جو ہے وہ سڑکوں پر زیادہ دیکھنے میں اکثر نظر بھی آتا ہے، کیونکہ اتوار کا روز ہے، شہری جو ہیں وہ باہر نکلے ہوتے ہیں اور اب واپسی کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ روڈ لائٹس کے حوالے سے جو کام ہے اس کو مکمل کرے، ان کو ٹھیک کرے، تاکہ لوگوں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو اور جو خوف و ہراس ہے وہ کم ہو، کیونکہ لائٹس بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف سڑکیں اندھیرے میں ڈوبی ہیں بلکہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے شہری بھی پریشان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حادثات سے بچانے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر ان لائٹس کو جی ٹھیک ٹھیک ہے کیا جائے۔ توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ چنگی امرسدو نالے کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار، 2 ماہ سے نالے کا کام بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ نالے کے گندے سے تعفن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، شہریوں کی جانب سے کہا گیا، جبکہ شہریوں کا انتظامیہ سے نالے کی تعمیراتی کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ چنگی امرسدو جو کہ نالے والے روڈ پر اس وقت موجود ہوں، یہ نالا کھلا ہے، اس کے اندر کافی کچرا بھی پھینکا جاتا ہے، جبکہ عرصہ دراز سے یہاں کے جو شہری ہیں وہ اس سے مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو تعفن ہے وہ بھی پھیلنے لگا ہے گندگی کی وجہ سے، بارش ہوتی ہے تو گندا پانی سیوریج کا باہر روڈ پر آ جاتا ہے، ارد گرد جو دکاندار حضرات ہیں ان کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گاہک بھی ان کی دکانوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں پر جو کہ اس نالے کو مکمل طور پر بند کرنے کا جو کام ہے وہ جاری تھا، مگر آدھا روڈ مکمل ہونے کے بعد، آدھا نالا بند ہونے کے بعد یہ تعمیراتی کام مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، اور کافی عرصے سے یہاں پر کام جاری نہیں ہے، کام نہیں کروایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ جو باقی رہتا ہے نالا اس کو بھی مکمل بند کروایا جائے، تاکہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ آسانی سے یہاں پر گزر بسر کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں 170 سے زائد رہائشی کالونیز غیر قانونی قائم ہونے کا انکشاف، سوسائٹی مالکان پلاٹوں سے زائد فالیں بیچ کر عوام کو مالی نقصان پہنچانے لگے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو صوبہ بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مکمل ڈیٹا جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ لاہور میں 170 سے زائد رہائشی کالونی غیر قانونی طور پر قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس گھنونے کاروبار کی روک تھام کے لیے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پیلرا کے ساتھ منسلک کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پیلرا کے ساتھ منسلک کرنے سے عوام کے پراپرٹی رائٹس کا مکمل تحفظ کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بھی پورے صوبے کے تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مکمل ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے تاخیر کا شکار این او سی کے اجرا کو یقینی بنانے کا عمل بھی تیز کر دیا گیا۔ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپمنٹ ٹائم فریم کے ساتھ گورنمنٹ رولز کی خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت کر دی گئی۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن اور ہارٹیکلچر کے لیے صوبائی اتھارٹیز قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ نے 3 صوبائی اتھارٹیز بنانے کی اصولی منظوری دے دی۔
पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी कायम की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज के कयाम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएगी। सूबाई अथॉरिटीज के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज दी गई। लोकल लेवल पर मैनेजमेंट बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का जायजा लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत की। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, ज़ीशान रफीक, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। PP 150 में तरक्याती कामों का सफर जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का चाइना स्कीम में PCC के काम का इफ्तिताह। दरीना मसाइल के हल पर आवाम ने इजहार तशक्कुर किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चाइना स्कीम गुजरपुरा ब्लॉक C2 में PCC के काम का इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमा आमिर रज़ा, मलिक शफकत, राना यूसुफ, चौधरी साबिर, शहजाद खान, लाला नूरुर रहमान, अब्दुल जब्बार, शेख उमर हमरा थे। राना अनवार, मेहर अहमद समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वज़ीर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। घोड़ों का रक्स और नोट भी निछावर किए गए। PCC का काम मुकम्मल होने पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मज़ीद कामों का भी वादा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इलाके में कई सालों से तरक्याती काम रुका हुआ था। अपनी टीम के साथ मिलकर हल्के की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो है वो कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहब जब से आई हैं, उन्होंने आते साथ ही जो सालों से लाहौर में तरक्याती काम रुके हुए थे, क्योंकि पिछले 5 साल में तो यहाँ एक ईंट नहीं लगी, और जो 5 साल पहले हुक्मरान आए थे, जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, उन्होंने तब्दीली ये की कि ये वो इलाके कि जो दिन रात जहाँ पर सीवरेज डलते थे, जहाँ गलियाँ बनती थी, उन सब का तामीराती काम बंद कर दिया गया था। और आज अल्लाह के फजल से जब से अवाम की वही हुकूमत जो हमेशा तामीराती काम कराने की मास्टर है, मरियम नवाज साहबा की ज़ेर क़यादत जब से आए हैं, अली परवेज़ साहब, मैं, हम सारे साथी यहाँ खड़े हैं, यूनियन कौंसिल के ज़िम्मेदारान खड़े हैं, हम सब मिलकर दोबारा हमने उस सफ़र का आगाज़ किया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद से मरकज़ी करियाना यूनियन लाहौर की सीनियर क़यादत की मुलाकात। शहर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद से मरकज़ी करियाना यूनियन लाहौर की सीनियर क़यादत ने मुलाकात की। यूनियन वफ़द ने काला चना, दाल चना, मूंगी छिलका और मुतल्लिका अजरास के निर्खों और गला मंडियों की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने होलसेल कीमतों की सूरत हाल का जायज़ा लिया। शहर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम और लाहौर शहर में होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन से मुतल्लिक करियाना यूनियन ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वफ़द में सदर ताहिर सकलैन बट, सीनियर नायब सदूर हाजी नवाज और मलिक वसीम के हमरा सेक्रेटरी इत्तलात ज़िशान गफूरी शामिल थे। DC लाहौर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास नुमाइंदगान के बजाय मजिस्ट्रेट्स को असखुद चालान करने की हदायत। मूसा रज़ा ने रोटी मुकर्रर निर्खों से ज़ायद कीमत फ़रोख्त पर बरहमी का इजहार किया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास का एजेंडा सरकारी निर्खनामे का निफाज और अवामी रिलीफ था। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कार्ड्स बना कर दिए जाएं। DC ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हर चेक पॉइंट की तस्वीर अपलोड करने की हदायत की और कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद फील्ड में मौजूद रहें। DC मूसा रज़ा का रोटी मुकर्रर निर्खों से ज़ायद कीमत फ़रोख्त पर इजहार बरहमी रोटी की कीमत 14 रुपये से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया। DC ने प्राइस कंट्रोल की मीटिंग रोज़ाना की बुनियाद पर तलब करने की भी हिदायत की। CCPO की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। बिलाल सदी कमियाना ने नामजद नामालूम मुल्ज़िमान और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की बरवक्त तकमील पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना के ज़ेर सदारत इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और DSPs इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। इजलास में नामजद नामालूम मुल्ज़िमान और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की बरवक्त तकमील पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। CCPO ने SSP इन्वेस्टिगेशन को रोज़ाना की बुनियाद पर नामजद और नामालूम मुल्ज़िमान से मुतल्लिक मुकदमात की मॉनिटरिंग की हिदायत की। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट को पेंडेंसी जल्द से जल्द निपटाने का हुक्म भी जारी किया। CCPO का कहना था कि SDPOs अपने तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा लें। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बरवक्त निपटाया जाए। 1 माह से पुराना नामजद, 3 माह से पुराना नामालूम मुकदमा ज़ेर इल्तवा न रहे।
ज़मीन.com के ज़ेर-इत्तमाम पीसी होटल में सजा प्रॉपर्टी सेल मेला, ज़मीन.com के नए रिहायशी मंसूबे, सफिया होम्स की लॉन्चिंग तकरीब, सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, अली रेहान, फ़रोग मोहम्मद खान और बासिल हफीज़ और दीगर ने शिरकत की। इसी होटल में ज़मीन.com के ज़ेर तमाम सजा प्रॉपर्टी सेल मेला, नए रिहायशी मंसूबे, सफिया होम्स की लॉन्चिंग तकरीब हुई। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, अली रेहान, फरोग मोहम्मद खान और बासिल हफीज शरीक हुए। बासिल हफीज का कहना था कि आज हमने एक ही छत तले 100 मंसूबे डिस्प्ले किए हैं। सफिया होम्स LDA से मंजूर शुदा मंसूबा है। 3 और 5 मरले के प्लॉट 5 साला आसान इकसात पर दस्तयाब हैं। लाहौर के अंदर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दैट इज़ सफिया होम्स, और सफिया होम्स जो है वो एक LDA अप्रूव्ड एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर आपको बहुत इजी पेमेंट प्लान के ऊपर 3 मरले 5 मरले के इजी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर फरोग मोहम्मद खान का कहना था, आज हमने लाहौर का सबसे बेहतरीन मंसूबा लॉन्च किया है। लोग सरमायाकारी से मयार जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। कि जहाँ पे ट्रेडिंग होती है चीज़ों की, जहाँ पे ऑन ग्राउंड अप्रूवल्स ना हो या ऑन ग्राउंड लैंड मौजूद ना हो, वहाँ पे ये मामला ज़्यादा देखने में आते हैं। लेकिन ज़मीन.com पे जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो आपको इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि जितने प्रोजेक्ट हैं ये 100% अप्रूव्ड हैं बाय ऑल द अथॉरिटीज़। डिप्टी डायरेक्टर सेल्स रबिया अफशां का कहना था कि 2006 से अब तक हम 50 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। ज़मीन.com पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट इदारा है। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें आप हार्डली 50% पे करके अकोमोडेशन रख सकते हैं एंड रिमेनिंग पेमेंट 5 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले सकते हैं। ज़मीन.com के प्रोजेक्ट ज़मीन औरम, ज़मीन जेट, ज़मीन फिनिक्स, ज़मीन क्वाड्रेंगल शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। ज़मीन न्यू, QHS1, जिना स्क्वायर मॉल और बीच रिजॉर्ट बाई आइकन मंसूबों ने भी खूब दाद समेटी। शुरा ने ज़मीन.com के पेशकर्दा मंसूबों पर इजहार इत्मीनान किया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। GT रोड कालाशाह काकू पर अल कबीर ऑर्चिड मास्टर प्लान की इफ्तिताही तकरीब, चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब की शिरकत। तकरीब में रियल एस्टेट सेक्टर से मुंसलिक शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। GT रोड कालाशाह काकू पर वाक़या अल कबीर आर्चर्ड मास्टर प्लान की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी अहमद, मुबीन अहमद मलिक और मियां अंजुम कदीर समेत रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब ने अल कबीर आर्चर्ड के मास्टर प्लान का इफ्तिताह किया। तकरीब के शुरका से खिताब में कहा कि अल कबीर आर्चर्ड कम कीमत में जदीद सहूलियात से आरास्ता वाहद हाउसिंग मंसूबा है। अल कबीर डेवलपर्स ने तमाम वादे निभाए। अल कबीर आर्चर्ड 800 कनाल पर मुश्तमिल नया शहर है जो मास्टर प्लान में दिखाया हकीकत में भी ऐसा ही होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर ऑर्चर्ड जो एक मेगा प्रोजेक्ट है और जो एक नया शहर बनने जा रहा है, इसका एक्चुअल मास्टर प्लान रिवील कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मास्टर प्लान जब पेमेंट प्लान कंप्लीट होने वाले होते हैं, जब पोजेशन का टाइम आता है, उस वक्त रिवील किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट के आगाज़ के ऊपर मास्टर प्लान दिया है और इसके अंदर वो तमाम अमेनिटीज़ जिनका हमने वादा किया था अपने मौजूद मेंबरान से, वो तमाम अमेनिटीज़ भी हमने इसके साथ ही मैप के ऊपर शो कर दी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर्स, डीलर्स और अल कबीर डेवलपर्स के सेल्स पार्टनर्स की जानिब से मंसूबे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अल कबीर आर्चर्ड को जदीद सहूलियात से रास्ता बेहतरीन मंसूबा करार दिया। अल कबीर डेवलपर ने यहाँ पे कितनी लैंड जो है वो एक्वायर की है, कितने हज़ार एकड़ जो है वो लैंड है और उस पर कौन सा ब्लॉक जो है वो किस लोकेशन पे होगा, उसका सेक्टर A कहाँ पे होगा, उसका ओएसिस ब्लॉक कहाँ पे होगा, उसका ओवरसीज प्राइम कहाँ पे होगा, और वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपके साथ डिस्कस करेगा कि यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे होंगी, कॉलेजेस कहाँ पे होंगे, आपका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, मसाजिद कहाँ पे होंगी। ये सारी चीज़ों का जो है आज एक मास्टर प्लान जो है वो रिवील किया जा रहा है। अल कबीर डेवलपर्स इंतजामिया का कहना था कि हमारा अज़्म है कि जदीद और कम कीमत में रिहायशी सहूलियात हर फर्द को मैसर हों। कीमत और कामयाबी के हवाले से अल कबीर आर्चर्ड मंसूबा अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। जौहर टाउन में स्पाइस एंड साउल रेस्टोरेंट का इफ्तिताह खाबों के शौकीन लाहौरिये एक छत तले देसी और जदीद तर्ज के खानों से महसूस हो सकेंगे। फैसल अयूब खोकर, बीबी वडेरी समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। देसी और जदीद तर्ज के खानों के शौकीन लाहौरियों के लिए शानदार रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन में स्पाइस एंड साउल के नाम से देसी और जदीद तर्ज के तमाम खानों में एक नया इजाफा हो गया। बीबी वडेरी, फैसल अयूब खोकर और मलिक शहबाज ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि खूबसूरत रेस्टोरेंट और जदीद खानों से लाहौरिये खूब महसूस होंगे। आपके अंदर जब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बनेंगे,
اور ایسے کاروباری لوگ مزید ریسٹورینٹس بنائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از پازیٹیو ان پاکستان پنجاب. ریسٹورینٹ بڑی لوکیشن اچھی ہوئی ہے تو ان کا فوڈ بہت اچھا ہے, تو اس کو انشاءاللہ لوگ ایک میری اپنا دوستوں سے اپنے حلقہ باب سے اپیل کہ ایک دفعہ اس پہ ضرور آئیں, آپ کو اچھا لگے گا, آپ انجوائے کریں گے. ممبر صوبائی اسمبلی میاں مرغوب کمل لیاقت نے بھی اسپائس اینڈ ساؤل کے کھانے کے معیار کو سراہا. جس انداز سے آج انہوں نے یہاں اوپننگ کی ہے اور جو کچھ یہاں پر کھانے کا معیار ہے اور جو کچھ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے, یہ ریسٹورنٹ جو ہے, لاہور میں ایک اپنا نام بنائے گا. بہت ساری بیسٹ وشز, اور اس کے ساتھ میں لاہوریوں کو یہ ضرور کہوں گی کیونکہ لاہوری زندہ دل لوگ ہیں, کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, تو میں انہیں پورا یقین سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اضافہ, ان کے ٹیسٹ میں بڑا اچھا اضافہ ہوگا. اسپائس اینڈ ساؤل کے مالکان بلال شبیر اور سردار شہباز کا کہنا تھا کم قیمت میں 5 اسٹار ہوٹل کا ذائقہ فراہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا جو ایمبیس ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے ٹو ادر پلیسز. ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں ہاف آپ کو دیسی ٹچ میں پھٹے لگے ہوئے ملیں گے, جہاں پہ ہاف آپ کو ان فائن ڈائننگ ہے, یو کین انجوائے فوڈ ود یور فیملی ان سائڈ. ریسٹورینٹ میں سب سے مین چیز جو ہم نے رکھی ہے وہ اسٹینڈرڈ آف سروس, اس کے اوپر نو کمپرومائز ہے, اور ٹو ٹاپ اٹ اپ جو ہماری کوالٹی آف فوڈ اور ہائیجین, اس کا ہم نے خاص طور پہ خیال رکھا ہے. لیگی رہنما حافظ نعمان, مرزا جاوید سینئر صحافی اور اینکر, عمر اسلم لیاقت آوان ایڈوکیٹ, یو سی چیئرمین 256 میاں اویس, معروف سماجی شخصیت راؤ صداقت اویس کلیار اور ڈیپٹی سیکرٹری انرجی ساجد منیر کلیار سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ عمیر افضل, سٹی 42. پاک امریکہ ہیلپ مشن اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت نامہ. ہیلپ مشن صدر شیخ محمد صدیق, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی شیخ محمد طاہر انجم کی شرکت. سماجی بہبود کے منصوبوں میں ترقی کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام پاک امریکہ ہیلپ مشن اور چیئرمین پاک امریکن بزنس ایسوسی ایشن شیخ محمد صدیق کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی. یہ فرام یو ایس ان پاکستان ایجوکیشن بھی لے کے آئیں گے, اور وہاں پر جو ہے کہ بھی ایجوکیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ ینگ جنریشن کو ہم ایسے گروم کریں گے, ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دیں گے کہ بھی وہ ایک بہت اچھے انسان بنیں گے. جب ایک اچھے انسان بنیں گے نا تو وہ دنیا کے اوپر پھر پاکستان کا نام ہوگا. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی شیخ محمد طاہر انجم, چیئرمین ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری, فہیم اعظم, ڈاکٹر شہزاد احمد بھٹی, لالا یاسر نصیر, عبد المتین شیخ نے شرکت کی. الحمدللہ آج بڑی خوشی کی بات ہے, المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان اور ہیلپ مشن یو ایس اے کے درمیان جو ہے وہ ایم او یو سائن ہوا ہے, اور ہمارے 92 اسکولز ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر اسکولز ہیں اور ہماری ڈسپینسریز ہیں, تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی ورکنگ کریں گے. تقریب میں دونوں تنظیموں کی جانب سے سماجی بہبود کے منصوبوں میں ترقی کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. چیئرمین ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے امریکہ سے آن لائن شرکت کی. ملکی ترقی کے لیے کاروباری اور انفرادی مثبت سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. ویلنچیا ٹاؤن میں نئے پروجیکٹ رائز آف ویلنچیا کی افتتاحی تقریب. سیکرٹری فخر اسلام بٹ, نائب صدر میاں نعیم اللہ سمیت دیگر نے شرکت کی. ویلنچیا ٹاؤن میں رائز آف ویلنچیا کے نام سے نئے پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب ہوئی. سیکرٹری فخر اسلام بٹ, نائب صدر میاں نعیم اللہ, جوائنٹ سیکرٹری فہد خان نیازی, دلاور محمود, ناصر گل, شعیب فاروق, سرفراز چغتائی, ایاز محمود, بدر بٹ اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر صدر کا کہنا تھا کہ رائز آف ویلنچیا میں شیپس آف ویلنچیا اسکولز بلڈنگ سمیت دیگر پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. منصوبے کا مقصد شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے. ہمارا مقصد ویلنچیا ٹاؤن رہنے والے رہائشیوں کو پرسکون اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہے. ان پروجیکٹ سے سوسائٹی کے لیے ریونیو اکٹھا کر کے ان کو بہترین کشادہ ماحول دینا ہے. حضرت بابا موج دریا بخاری کے 462ویں عرس اور حضرت شاہ چراغ کے 396ویں عرس تقریبات کا آغاز. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی خصوصی شرکت. رسم چادر پوشی میں زائرین اور عقیدت مند بھی شریک ہوئے. حضرت بابا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر ہونے والی چادر پوشی کی تقریب میں سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری, زونل ایڈمنسٹریٹر ایاز لاشاری, ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن آصف اعجاز سمیت زائرین اور عقیدت مند شریک ہوئے.
इस मौके पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि औलिया कराम ने दीन इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। हज़रत मौज दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनका आज सालाना 3 रोज़ा उर्स जिसका अभी हमने चादर पोशी से आगाज़ और इफ्तिताह करने की सआदत मुयस्सर आई है। इनका बहुत रोल है, बहुत बुनियादी हैसियत है इनकी। और आज जो हम सोसाइटी के अंदर एक इंतहा पसंदी और तशद्दुद देखते हैं, बोध देखते हैं, तो उसके तदारुक के लिए हमें इन सूफिया की तालीमात की तरफ जाना होगा। उर्स तकरीबात के दौरान ज़ायरीन धमाल डालकर अकीदत का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हजरत शाह चराग रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर भी चादर पोशी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सेक्रेटरी औकाफ ने खुसूसी शिरकत की। दौरान तकरीब मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। उर्स तकरीब में ज़ायरीन और अकीदत मंद की बड़ी तादाद हाजिरी देने आ रही है। कैमरामैन अंजुम, नदीम और इफ्तिखार अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। पिंक पोलो कप मास्टर पेंट्स ने जीत लिया। फाइनल में डायमंड पेंट्स को शिकस्त का सामना। फाइनल के मौके पर खवातीन के नुमाइशी पोलो मैच के साथ साथ खवातीन ने नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा किया। जिनाह पोलो फील्ड में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए खेला गया पिंक पोलो कप टूर्नामेंट मास्टर पेंट्स ने जीत लिया। मास्टर पेंट्स ने फाइनल में डायमंड पेंट्स को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी। फाइनल से पहले पाक वॉरियर्स और होप राइडर्स की खवातीन टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया। खवातीन खिलाड़ियों ने मैच के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। I'm here for especially for polo and I'm delighted to be here at this club and everything was perfect. I'm really happy that they're offering females a chance to play, and I'm very happy that each team has 3 girls and it actually allows women to play and participate in polo and be equal to men. इसमें सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि इतनी ज़्यादा लड़कियां बाहर से आई हैं और खेलने के लिए इवेंट। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। फाइनल मैच से कबल बाइकर्स क्लब के मोटरसाइकिल सवारों ने रैली निकाली। खवातीन नेज़ाबाजों ने फन का मुजाहरा किया और शायकीन के दिल जीत लिए। डीजी रेंजर्स पंजाब मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाक व्हील्स के ज़ेर-ए-तमाम एक्सपो सेंटर में कार मेला सज गया। मुख्तलिफ मॉडल्स की हज़ारों गाड़ियों की नुमाइश की गई। गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद उमड़ आई। हज़ारों मॉडल्स की गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। पाक व्हील्स के ज़ेर-ए-तमाम एक्सपो सेंटर में ऑटो शो 2024 का इनेकाद। मुख्तलिफ मॉडल्स की हज़ारों गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जो गाड़ियों के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। जिस तरह के पूरे पाकिस्तान अपनी खिदमत टैक्स पेट्रोलियम में अदा कर रहे हैं, तो लोग आएँ, लोगों को पता चले कि किस तरह हम इम्पोर्टेड क्वालिटी लोगों को सर्व कर रहे हैं। जब आप इन एक्टिविटीज़ में आएंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका जो मकसद है वो आने का वो मकसद भी पूरा होगा। कार मेले में गाड़ियों के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में पहुंच गए। ऑटो शो में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की जा सकती है। पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस पर 50%, अपनी कार केयर प्रोडक्ट्स पर 30% रियायत भी दे रहा है। गाड़ी बेचने या जबरदस्त ऑफर्स के साथ कोई भी गाड़ी खरीदने का ये बेहतरीन मौका है। इस तरह के शोज होने चाहिए। बहुत अच्छा शो है। इसमें बता गाड़ियों के बारे में, इंजन इवन बता रहे हैं, कौन से इंजन लगे हुए हैं, गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ी है, 4x4 है, इवन 20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं आपके सामने। तो बच्चों को पता होना चाहिए गाड़ियों के। ये जो शो है ना, हम हर साल देखने आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द करवाएं, और यहाँ पर ज़्यादातर हमें सेलिब्रिटीज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर ये अपना शो दूसरे सिटी में भी करवाएंगे ना, हम फिर भी देखने जाएंगे। शुरका का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे शोज गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उसरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।